Good morning, students. In my last video, I was talking about taxonomy, systematics, and the concept of a species. This was over. So, naming of a species, binomial nomenclature, we have to start. So, this nomenclature may be defined as a system for naming the organism. Now, how the organisms are named, that is actually the system which is called binomial nomenclature. And why this binomial nomenclature was needed, this is written in this paragraph. So in this paragraph, you can go through it. I'll just give you a brief introduction about this, what is written in this. It's written that we are having different names when we go to different locations. We call a similar thing with the different names, like they've given an example of प्याज, यू कैन सी हियर. तो हिंदी में हम उसको प्याज बोलते हैं, कहीं पर उसको कांदा बोला जाता है. एंड देर वेर एवर यू विजिट मीन्स डिफरेंट प्लेसेस. एक सिंगल चीज़ जो है अनियन है ना, इंग्लिश में उसको अनियन बोल रहे हैं, फिर प्याज बोल रहे हैं. फिर अलग अलग जगह आप अगर इंडिया में ही अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो यू विल हियर दैट विद अ डिफरेंट नेम. ओके, तो यहाँ पे ये देखिए तमिल में भी इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है. देन you are having in Kannada also the names are given. So you are having different names. तो अगर आप ऐसे ही नाम सुनते रहेंगे अलग अलग तो you will think that these are different type of things, है ना. आपको ये नहीं लगेगा कि ये प्याज है. तो बाइनोमियल जो सिस्टम है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू remove this confusion of things. To remove this confusion, the scientific names were made. And scientific names क्या थे, ये पूरे all over the world they are same. Means every country, every state, everywhere, means wherever different cities are there, all the scientific people use this type of names only. These are called the scientific names, and these are given by some councils, like it's given over here. That first one is your International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. And the other one, this is for plants. Okay, यहाँ पे botanical आया हुआ है तो ये आपके plants के लिए है. Similarly, we are having the other one. This is for the International Code of this is Zoological Nomenclature, ICZN. So these are the two organizations which are naming the organism. Okay, so these names are given. One is for zoology, means ये आपके animals के लिए होगा. दूसरा है botanical, this is for the plants. So whatever plants and animals, after the research, if the scientists are finding out some new type of plant and animal, it has to be provided with the scientific name. If scientific name is not given, तो हर एक आदमी क्या करेगा, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई ना कोई नाम दे देगा. और कोई ना कोई नाम देने से वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिमिलर नाम से नहीं पहचाना जाएगा, और इससे क्या होगा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना. अगर 4 लोग बैठे हैं और अलग अलग स्टेट से हैं इंडिया में ही, तो इफ़ दे आर टॉकिंग ऑफ अ सेम थिंग, प्याज की बात कर रहे हैं, तो हर एक आदमी अगर अपनी अपनी लैंग्वेज में प्याज का नाम बोलेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कन्फ्यूजन. So if we take a scientific name, that confusion is over, because all the 4 people sitting together, they know that the scientific name of onion is similar, means it is similar for all have read one single name. A very simple example which you have heard many times, Pisum sativum, मटर, है ना. जो आप peas हैं, आप 10th में भी पढ़ा था आपने, that Pisum sativum is the name of, it is a scientific name of peas, राइट. सो पीस जो हैं, अगर मटर आप यहाँ पे बोल रहे हैं तो हो सकता है दूसरे स्टेट में उसको दूसरे नाम से बोला जाता होगा. इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, तो वी टेक डिफरेंट नेम्स. बट if we talk of a scientific name, Pisum sativum is known as the scientific name of a pea, and it is called all over the world, it is called Pisum sativum, right. तो अगर आप Pisum sativum नाम लेके बात करेंगे तो confusion is clear, right. So anyway, please go through the text. This ICBN and ICZN, both the full forms you need to learn, because this will come for 1 marks question again, and this can come in exam. Okay, now next is your binomial system. Now binomial system, ये nomenclature it was first introduced in 1753, और ये आपके स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, कार्ल वॉन लिन, है ना. तो ये इनका नाम था, और इनका नाम जो है लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है लीनियस.
right? Now according to the rules of the nomenclature, the name of the organism consists of two latinized word, है ना. तो दो latinized word होते हैं Latin language में ही, और उनको क्या करते हैं जब आप एक साथ रखेंगे तो that is called the scientific name. So one is a generic name, other is a species name. आपका जो पहला नाम होता है, you can see here that this is the generic name. First one is the generic name, and the second word which begins with a lower case letter is referred to as स्पेसिफिक एपिथिक. नाउ इसमें क्या होता है कि ये आपका जेनरिक नेम है, मतलब ये जीनस का नाम होता है जो पहले होता है. अगर हम पाइसम सटाइवम की ही बात करेंगे तो पाइसम विल बी द जेनरिक नेम, और जो उसका स्पीशीज़ का नेम है दैट इज सटाइवम. नाउ बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली. अभी ये इस पैराग्राफ में दे हैव इंक्लूडेड द रूल्स विच आर यूज्ड फॉर व्हाट writing the scientific names. So whenever you write a scientific name in 9th standard also I have told, so some of the students might be remembering, whenever you write, first one is the generic name. In the generic name the first letter will be capital and it will be followed by the species name which will start with a small letter only. आप ऐसा नहीं है कि पाइसम का आप पी बड़ा लिखेंगे उसके बाद आप सटाइवम का एस भी बड़ा लिखेंगे. आप सिर्फ पाइसम का क्या करेंगे, पी बड़ा लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, एज यू कैन सी हियर. ये देखिए है ना. तो दीज आर द नेम्स. यू कैन सी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, और उसके बाद जो उसका स्पीशीज़ नेम है ना दैट इज़ कंटिन्यूइंग विद अ स्मॉल लेटर ओनली, राइट. फिर ये देखिए अगर आपका बुक में प्रिंट है तो ऑब्वियसली इट विल बी इटैलिक्स, है ना, इटैलिक्स फॉर्म में होगा. But if you are writing by your hand, what you will write? First you will write the generic name, then species name, और उसमें आपका species जो generic name होगा वो पहला लेटर कैपिटल होगा and the species name will be followed with a small letter. लेकिन आप उसको underline ज़रूर करेंगे separately. इट विल नॉट बी अंडरलाइन टुगेदर. आपने पूरी लाइन एक साथ नहीं बना देनी है कि आपने पाइसम सटाइवम को एक बड़ी सी लाइन से अंडरलाइन कर दिया है. पाइसम यू विल अंडरलाइन सेपरेटली एंड सटाइवम यू विल अंडरलाइन सेपरेटली. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच आर गिवन हियर. Now then after this what they have written this again they have given the example of Pisum sativum only here. Now और इसके आगे आप L लगा देते हैं, है ना. तो फर्स्ट वर्ड जो Pisum है that is designates the genus and second one sativum is a particular species. अब species आपकी एक चीज़ की क्या होती है, काफ़ी सारी species हो सकती हैं, ठीक है. तो ये स्पीशीज़ जो होती हैं कई बार चेंज होती रहती हैं. पाइसम अगर सेम भी है तो अगर मटर की और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं तो स्पीशीज़ अलग होंगी उसकी, तो क्या होगा कि जो सटाइवम वर्ड है वो बार बार हो सकता है कि चेंज हो जाए अगर स्पीशीज़ अलग हैं तो. Now the scientific name is followed by a name of a person, usually abbreviated form, whose first name is describes the person who first named and described this species. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है ना कि जो आपका नाम है पाइसम सटाइवम एल लिखा है तो एल कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा एंड दैट एल इज़ डेजिग्नेटेड फॉर द पर्सन हु हैज़ रिटन और हु हैज़ गिवन द नेम पाइसम सटाइवम. ठीक है. तो जिसने ये नाम दिया होगा उसके नाम के आगे मतलब वो वाला लेटर, जैसे ये लीनियस ने फाइंड आउट किया था, ठीक है. तो लीनियस ने किया था तो हम लिखेंगे पाइसम सटाइवम एल, और एल जो होगा वो कैपिटल लेटर का होगा बिकॉज लीनियस इज फाइंड इट आउट. ओके. नाउ इफ द नेम ऑफ अ स्पीशीज इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज अदर देन लैटिन, अगर लैटिन लैंग्वेज में नहीं है वो साइंटिफिक नेम तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द लैटिन नेम एंड देन ओनली द साइंटिफिक नेम विल बी फाइनली मेड. Now, no two generic names in a kingdom can be same, but the same specific name can be used in two different genera. अच्छा अब ये देखिए species name जो kingdom है ना, तो the two generic name in a kingdom cannot be same, मतलब दो जीनस एक जैसे नहीं हो सकते हैं. लेकिन species का नाम जो है ना वो अगर आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं पाइसम सटाइवम तो पाइसम बार बार दूसरी जगह कहीं यूज़ नहीं होगा. लेकिन सटाइवम जो जीनस है ना, सॉरी स्पीशीज़ है, तो सटाइवम जो वर्ड है वो आप कहीं और दूसरी स्पीशीज़ के लिए और किसी और जीनस में भी यूज़ कर सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. मीन्स द जीनस विल रिमेन सेम बट इफ़ यू आर हैविंग स्पीशीज़ that species can be spelled out in with some other genus also somewhere else.
गॉट माई पॉइंट? मतलब जेनरस जीनस जो है वो आप कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, वो एक ही होता है ना। और स्पीशीज़ हो सकता है कि आप मतलब दूसरी स्पीशीज़ को क्या करें, जो स्पीशीज़ है उसको आप दूसरे जीनस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कहीं और. ओके, नाउ दिस एग्जाम्पल दे हैव गिवन two different genera. For example, the same species name indica has been given to the mango, Mangifera indica, and ये दूसरा क्या है, टर्मेरिन. तो दिस इज टर्मेंडिस इंडिका. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना स्पीशीज़ देखो, इन्होंने बार बार जो जीनस है ना वो अलग कर दिया है. यहाँ मैग्नीफेरा है और यहाँ टेमेरिंडस है ना, ठीक है. और इंडिका देखो दोनों में लगा हुआ है. तो ये मैं बोल रही हूँ कि स्पीशीज़ जो होती है ना वो आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं किसी और जीनस के साथ. गॉट माई पॉइंट? सो these were the rules how you write the binomial nomenclature, how it is done, and how we write when we are writing with the hand. And if we are printing it, obviously the botanical name or the zoological name, the scientific names, they should be in italics. Now these are 1 marks question for you. You have to go through. These are the common names, these are the scientific names, है ना. ये आपको बहुत बड़ी टेबल दी हुई है और इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. फॉर द 1 marks क्वेश्चन, पार्ट 1 में 1 marks क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो यू हैव टू गो थ्रू द साइंटिफिक नेम्स एंड प्लीज़ लर्न देम. ओके, then these are the advantages of scientific names. What are the advantages? Why do we use them? Now for this every species has a single and a specific name consisting of 2, rarely 3 words, है ना. तो इसमें क्या होगा कि सारी स्पीशीज़ में क्या होता है, मोस्टली सिंगल नाम होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि वी राइट इट विथ 2 names, और बहुत ही रेयरली होता है कि कभी 3 words उसमें आ जाएं. Now every organism known to science has been provided with a scientific name irrespect of its importance, है ना. तो मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस हो ना हो इन द लिविंग वर्ल्ड, अगर वो लाइफ है उसमें तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम ज़रूर दिया गया है. नाउ देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ अ साइंटिफिक नेम. आई होप अंडरस्टूड, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट इसमें स्पेलिंग का कोई चेंज नहीं होगा. Now the names of the universal application for all throughout the world. तो ये जो names है ना are of universal application, मतलब कि सारी दुनिया में यही words जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो साइंटिफिक नेम बदल जाएंगे, ये सेम ही रहेंगे. देन नेक्स्ट वन इज़ दे आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड आर ईजियर टू रिकलेक्ट, है ना. ये आपके लिए ईजी भी हैं. अगर आप डेटा कहीं इधर से उधर भेज रहे हैं तो अदर कंट्री ऑल्सो नोज़ कि साइंटिफिक नेम ये है, तो अगर आप वहाँ भेजेंगे तो दे विल ईजिली अंडरस्टूड दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, देन अ रॉन्ग नेम कैन बी ईजीली करेक्टेड, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं. अ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कैन बी ईजीली प्रोवाइडेड विद अ न्यू साइंटिफिक नेम. जो नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा आप उसको नया साइंटिफिक नेम दे सकते हैं. दे ऑफन इंडिकेट द सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. फिर आप साइंटिफिक नेम अगर कुछ लिख रहे हैं तो उससे क्या होता है ना कि यू आर कमिंग मीन्स यू कम टू नो सम स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ दोज स्पीशीज़. अगर आप किसी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो स्पीशीज़ मतलब कुछ बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उनकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म को उस स्पीशीज़ में रखा गया है. तो जिस स्पीशीज़ में मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब वो सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है. तो इस स्पीशीज़ में मतलब स्पीशी या जीनस हो गया, आपका फैमिली हो गया, किंगडम हो गया, अगर आप कोई भी डिवीजन लेंगे तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि उन चीज़ों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी है अपने आप में. Okay, now history of classification, this is what you have to go through, means it's not that important but you go through the text, history of classification. Then binomial nomenclature also they have given over here, means it is just how it was done, means कैसे पूरी हिस्ट्री से होते होते और लास्ट में binomial nomenclature जो है, binomial मतलब by means 2 names, एक जीनस का नाम है एक स्पीशीज़ का नाम है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल. बाई मीन्स 2. ओके, तो 2 नेम से हमने ऑर्गेनिज्म का नाम रखा है, तो ये इसलिए दिया गया है मीन्स इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लीनियस, और ये आपका फाइनली हुआ, मतलब फाइनली जो है दिस वॉज सेट फॉर द होल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कि लास्ट में मतलब ये डिसाइड कर लिया था सबने कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है दैट इज़ द
फाइनल थिंग विच वी विल डू फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. तो यहाँ पे ये दिस इज द न्यू सिस्टमैटिक्स केम इन टू प्ले. देर वर सम चेंजेस इन द बाइनोमियल nomenclature and these are the major categories of classification. Okay, so this is artificial system of classification and natural phylogenetic. ये तीनों के तीनों सिस्टम फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आते हैं और ये आपने फिर अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है. मतलब ये मैं पढ़ाऊँगी, आई विल टीच यू दिस. व्हाट यू डू, you have to read this previous page, history of classification, then you have to learn this scientific names. This is your homework and this is to be means done for sure. Don't keep it pending because you will have most probably in September mid you will have the exams. So please, whatever we are teaching, please learn it side by side, right? So ये advantages of using the scientific names आपने याद करना है, ये सारा चीज़ें. This I'll continue in my next video. Meanwhile what you do, this is numerical taxonomy. ये वाला जो आपका पूरा बॉक्स है, प्लीज़ गो थ्रू दिस बॉक्स. ओके, ऑफ कोर्स आई विल डील विद दिस इन शॉर्ट, बट आपको ये पढ़ना है और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, साइंटिफिक नेम्स जो हैं दैट यू हैव टू लर्न. ओके, सो फॉर माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, थैंक यू.